Hello, everyone. Thank you so much for joining the 6 p.m. Chai meetup on a Friday evening. We welcome each and every one of you who is here and also grateful for everybody who is listening to this as a recording. We are so grateful to you guys. So, our 6 p.m. Tribe meetup is designed to bring you all closer to each other. So when you guys share your victories or when you guys share your challenges and how you overcame, how you did a practice and how you got a victory, it is an answer to someone else's problem and they are looking for it and they get it. So we are here to form bonds. We are here to feel connected because one of the most important reasons to have longevity, that is to live a long life, you need to have a sense of community, a sense of belongingness. Majority of deaths that happen across the globe, जो मौत होती है, उनका नंबर वन एक्चुअली कारण पाया गया है कि वो लोनलीनेस है, फीलिंग अलोन. Not that doesn't mean they're not surrounded by family. Even after being surrounded with family, if you're not getting connected, यानी कि वो हमको समझते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, मैं उनको समझता हूँ, मैं उनको समझती हूँ, ये वाला अगर फीलिंग मिसिंग है आपके लाइफ में, कोई मेरे को समझता ही नहीं है, मेरे भावनाओं को नहीं समझता है, कोई कोई ये नहीं समझता है मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ, ये अगर फीलिंग आपके दिल में है, this is the number one reason for you, for the age to come down, for your lifespan to come down. And that is something that we do not want for anybody. We want everybody to become centenarians and above, in fact double centenarians if you can, and stretch the human life as much as possible. And that is the intention behind this 6 p.m. tribe meetup at Brain to Body Revolution. So thank you for all you guys, for all your energies, and let us hope कि more and more people will join us and the tribe will go on building, and one day will be a huge community where we are all like, oh my god, it's an arena full of people and we are all celebrating each other. So with that intention set very stiff and very rigidly in our heart, let us begin today's beautiful tribe meetup. But before we start, so hi to all of you over here. Thank you so much. So we would love to hear your sharings of this week, and we either can we can wait and do it at the end when a lot of people have joined in. Maybe people are just finishing up their work and trying to join. So we will reserve 10 minutes in the end to hear your sharings and sharings alone. And today, what we want to discuss is about our upcoming course, which is Forgiveness and Heal program. So, why we came up with this program? That's first thing that we want to clarify. And who is it all for? Once again, we want to make this very clear. Third thing is we want to clarify what is being offered in the course. This is very important, that I think we think that might have been confused a little, and the reason why this course is a little bit different to our other offerings at Brain to Body Revolution. So we will go through all of this. I'll talk a little and then Priyadi will talk a little, and then we will give the platform for you guys to talk. And we have a beautiful video smash mashup that is done that we would love to share, which was involving all the challenges that you guys did. So stay tuned till the end. Okay, there's fun part in the end, maybe lecture at the start. ठीक So है? this is because we want you guys to be here. That's why we are fun का lollipop पकड़ाया जा रहा है, guys. हाँ, yes, we are learning advertising and marketing. ठीक है. Okay, so first thing, oh, Suman is here, Seema Didi is here. Thank you guys, thank you so much for joining. So first thing, how many of you have this doubt कि how much should I forgive? कितना फॉरगिवनेस करना है, हाउ मच शुड आई फॉरगिव, और कितने दिन तक फॉरगिवनेस करना है. एक एक
चीज के बारे में हमको कितना देर यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस ऑन वन पर्टिकुलर टॉपिक. किसी को है ये डाउट? एनीबडी हैज दिस डाउट अमंगस्ट यू? अरे वाह, सब सॉर्टेड है दीदी, नो नीड टू टेक दिस सेशन. ठीक है. All developed mindset people they are. All are developed here. So please bear with us when we address people who are not here. Maybe that is one of the people's questions. So because we have got these questions Not many couple of questions times. actually. Yeah. Yeah. So So please bear with us, and if you want to add at some point, you can of course raise your hand and of course add into it, because your experience matters. So first thing first, we'll want to reiterate this. Forgiveness क्या है? Forgiveness is to give. Forgive. For means to someone. Give means you are giving. ठीक है? Because for you. Okay? Forgiveness is not for. Actually, one of the person has said कि forgiveness is the most selfish thing you can do in this whole world. Because it is for you. To heal parts of you that have been broken for whatever reason that can be broken for. ठीक है? Forgiveness is to give something to someone from your capacity. Okay? This is first thing. Why you have to do forgiveness? If you have seen, if आप अगर देखे हो, जिस कारण से हम एक चीज को लेके उदास है, खफा है, नाराज है, जो भी है, वो एक ही बार हुआ है. दैट सिचुएशन माइट हैव हैपेंड ओनली वंस. ओके, with the person, particular place or thing, whatever that incident might have happened only once, correct? But we are reliving it every day, or whenever that thought comes, or whenever that memory comes, or whenever that person comes in, or whenever that person's who is not there, the thought comes, वो बार बार आपके दिमाग में आता है, correct? So if you think of it, it's not actually that situation. It's not actually that person. It is your own things, the thoughts, beliefs, and memories that are triggering that reaction over and over again inside you, that emotion again and again inside you. Remember, if an emotion is not resolved, अगर एक emotion है आपका जो अगर resolve नहीं हुआ है, तो आपका माइंड उसको बार बार ऊपर लेके आएगा, सो दैट इट कैन रिजॉल्व इट. दिमाग में ना कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, ब्लॉक्स 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 होते हैं. उसके पास एक ब्लॉक है, एक फाइल कैबिनेट है जहां पे लिखा गया है कि ये रिजॉल्व नहीं है, ये रिजॉल्व नहीं है, ये रिजॉल्व नहीं है, ये रिजॉल्व नहीं है. ठीक है? मीनिंग वो जो इमोशन है ना, उसको हमने टाइम नहीं दिया है, उसको फील नहीं किया है. जैसे कि आप एंगर फील नहीं करना चाहते हो, सैडनेस फील नहीं करना चाहते हो, राइट? दीज आर इमोशंस दैट वी डोंट वांट टू फील, मीनिंग वी डोंट वांट टू एक्सपीरियंस इट. सो व्हाट वी डू, वी पुश इट असाइड. वी से नो 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 नो, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ गुड पर्सन. है ना? बहुत सारे लोग हैं कि अरे गुस्सा आ रहा है, नो नो नो, गुस्सा इज अ बैड ट्रेट, नो 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 नो, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ काम पर्सन, आई एम अ काम पर्सन. बट क्या हो गया, वो एंगर को आपने दबा वो दिया. एक्सपीरियंस ही नहीं किया. तो क्या हो गया, वो आपके माइंड में, वो फाइल सिस्टम में क्या जाके बैठ गया कि दिस इज नॉट रिजॉल्व. ये क्लोज नहीं हुआ है चैप्टर, ये केस बंद नहीं हुआ है. तो जो केस बंद नहीं हुआ है, इवेंचुअली केस को सॉल्व करना पड़ता है ना. तो क्या करेगा माइंड, जब आप शांति से बैठे हो, आराम से बैठे हो, वो बोलता है हाँ अभी वक्त है, इसको ये जो पेंडिंग वर्क है ना, इसको इसको काम पे लगाते हैं. दैट्स व्हेन इट विल ब्रिंग अप दैट इमोशन अगेन. देखना, आप बैठे हो, खाली बैठे हो, सडनली कुछ मेमोरी आती है और आपका मूड फिर से डाउन होता है. वाई? बिकॉज ऑफ दिस अनरिजॉल्व इमोशन. That's why you need to forgive. Forgive का मतलब ये है, you are going to experience that emotion and you going to make yourself free of that emotion. वो जो emotion था उसको आप उसका attention देके उसको liberate करोगे. That is forgiveness. So this is why you have to practice forgiveness. Forgiveness is for you to address the emotion that had arose which was not addressed, because वो mind में वो बना ही रहेगा.
एंड इट विल नॉट गो अहेड इन लाइफ। इसके वजह से क्या होगा, आपके लाइफ में जो जो चीज आना है वो नहीं आ रहे हैं। दैट्स द मेन रीजन यू विल हैव टू फॉरगिव। ठीक है, ये हो गया तीसरी बात। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि ये क्यों मेरे साथ बार बार होता है, राइट? सेम थिंग्स हैपन ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसे ही होते हैं कि बार बार होता है ये चीज, है ना? लाइक why me only, why it keeps happening to me only, why this thing keeps repeating as a pattern, why it keeps coming? maybe आप मनी के साथ है या रिलेशनशिप के अंदर है, वो बार बार रिपीट होता है ना? करेक्ट। ठीक है, तो ये हमको एक समझना है। हम में से बहुत लोग यहाँ पे फॉरगिवनेस करना चाहते हैं, है ना? डू यू वांट टू फॉरगिव? बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको कि यस, हमको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, हमको फॉरगिव करना है, हमको फॉरगिव करना है। सो व्हाट इफ वी से यू दैट दिस इज योर मैनिफेस्टेशन? डाइजेस्ट होगा? नहीं? लेट मी गिव एन एग्जांपल। सपोज एक डॉक्टर है, देयर इज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बन चुका है, पढ़ाई लिखाई करके ना डॉक्टर बन चुका है। उसने कसम क्या ली है? दैट आई विल हील द पीपल। करेक्ट? आई विल हील द पीपल। So for him to heal the people, what has to happen? किसी को बीमार पड़ना पड़ेगा ना, तभी जाके वो हील कर पाएगा। This is the dark side. This is the side of life that we don't want to see. Correct? But this is the truth of life. This is called mountain of improbable. To achieve something, an opposite has to happen. उसका अपोजिट होना ही होना है। मैं और दीदी आज बात कर रहे थे कि आज टॉपिक किस पे बात करेंगे, what are we going to talk about today, about this forgiveness. And we were just talking, and while talking I had to explain to her like why are we like we just talk like this, we talk like how I'm talking to you guys. ठीक है? और मैं बोला, दीदी देखो ना, हमने बोला है कि वी विल रेवोल्यूशनाइज 1 बिलियन लाइव्स इनटू जॉयफुल एंड कॉन्शियस लिविंग। हमने एक कसम खाया है कि हम 1 बिलियन लाइव्स को अफेक्ट करेंगे। तो इनडायरेक्टली हमने ये मैनिफेस्ट किया ना कि 1 बिलियन लाइव्स आर नॉट हैप्पी। तो हम उसी चीज को फिर अनमैनिफेस्ट करेंगे व्हेन वी affect them, and then we call it again manifestation. So this is the chakra view of life, this is the cycle of life, and this is called mountain of improbable. एक चीज होने के लिए दूसरा चीज होना बहुत जरूरी है। For you to forgive, an accident or an incident has to happen, only then you can practice forgiveness. ठीक है? तो एक पर्सन को जीतने के लिए एक का हार होना जरूरी है। एम आई राइट? एक का जीत होने के लिए एक का हार होना जरूरी है। दिन होने के लिए रात होना जरूरी है, रात होने के लिए दिन होना जरूरी है। दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ, एंड इफ यू आर गोइंग टू रेजिस्ट इट, दैट्स व्हेन मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग इन लाइफ। दिस कम्स टू आवर नेक्स्ट पॉइंट कि कब तक फॉरगिवनेस करना है। फॉरगिवनेस तब तक करना है जब तक आप ये बात को एक्सेप्ट नहीं करते हो कि एक चीज होने पे ही दूसरा चीज हो सकता है, एंड दैट बोथ आर सपोज टू हैपन। And we both have a favorite quote which is given by Vishen Lakiani, and he heard it from one of the master, one of his coaches, one of his guru, who said, a master never forgives. A master never forgives. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, वो ही चाणक्य है, वो ही मास्टर है जो ये समझ लेता है कि होना या ना होना ये तो सब लिखा हुआ है। एवरीथिंग इज रिटन एंड एवरीथिंग इज एज इट इज सपोज टू बी।
एंड आई एक्सेप्ट एज इट इज। युद्ध भी होना है, युद्ध होने पे ही शांति मिलेगी, शांति होने पे ही युद्ध आएगा। मरण होगा तभी जीवन, birth hoga, there will be birth only after a death and death. So there is no need to get upset, disappointed, complain or regret or feel guilt, shame, any of this. Neither there is reason to feel joy, ecstasy, amazement, happiness, because everything is supposed to happen. जब आप ये लेवल पे आ जाओगे, दिस लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस कि दिस वाज सपोज टू हैपन एज इट इज, हाँ मेरे को गुस्सा आना ही था क्योंकि वो सिचुएशन ऐसे ही था, हाँ मैंने रिएक्ट ऐसे किया, हाँ मैंने किया, ये जब तक आप एक्सेप्ट कर लोगे, इससे मेरे को कुछ अच्छा मिला, ये जब आप एक्सेप्ट करने लगोगे, देन यू डू नॉट हैव टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड द नेचर एज इट इज, एवरीथिंग यू हैव एक्सेप्टेड। व्हेन यू एक्सेप्ट देयर इज नथिंग टू फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब ये है कि आप जोन में हो कि कुछ चीजें राइट या रॉन्ग है। when you are in the zone of trying to forgive someone, you are like, this should have happened like this or this should have not have happened like this, meaning you're trying not to accept what has happened with you. That's when you'll have to practice forgiveness. But the day you accept anything and everything that is happening as a as a destined thing, as a thing that is supposed to happen and it is meant to happen, that's when you will not need the feel the need to forgive. That's when you'll become a master. हम सब लोग तो वहां पे नहीं है अभी फिलहाल. So it's a long way to become a master. So we'll keep practicing forgiveness till we start learning. आप फॉरगिवनेस करके क्या लर्न करोगे? आप लर्न करोगे एक्सेप्टेंस, चीजों को एक्सेप्ट करना. जैसे जैसे आप फॉरगिव करते जाओगे जाओगे, आप एक्सेप्टेंस करते जाओगे 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 जाओगे, till that time when you naturally accept everything that's happening, when you shed away one core belief of yours that there is something good and there is something bad, कि दुनिया में एक सही है और एक गलत है, एक सच है एक झूठ है. जब आप ये कोर बिलीफ को छोड़ दोगे, तब आपका फॉरगिवनेस की जर्नी खत्म होके एक्सेप्टेंस की जर्नी स्टार्ट होती है. सो दिस 30 days is for people who wants to practice not forgiveness, actually who wants to practice acceptance. So if you are ready to accept what is happening to you, happening for you, then everybody is welcome here. And if you are practicing acceptance as it is, then great job. You don't need this. Okay. With that, I know, bit heavy. I'll hand it over to Priya, who will make it, take it a little notch down from here and make it more easier and simpler for you guys to digest it. But thank you so much for listening to me. These were my 2 cents of why forgiveness has to be done and what is the meaning of forgiveness. And Supriya, would you like to continue with the rest of the section? Yeah, thank you so much, Soumya. It was amazing, actually. People might definitely will be knowing that what is the meaning of it, but at the first time ना, जो भी ये सुनेगा कि मास्टर नेवर फॉरगिव्स, तो उनको यही लगेगा कि यार इसका मतलब तो हम लोग फालतू में कोर्स कर रहे हैं, हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है कोर्स की, बिकॉज हमको तो यही बताया जाता है कि फॉरगिव करना है, फॉरगिव करना चाहिए उनके लिए नहीं, अपने लिए करना चाहिए. सो वी ऑल are into this journey, most of us, like all of us who are there in the session right now, और जो भी हम लोगों को डेफिनेटली हम लोगों को यूट्यूब में सुनेंगे, तो डेफिनेटली जो हमें सुन रहे हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, तभी वो सुनेंगे, एंड वी अलाउ दैट. तो क्या होता है ना कि जिंदगी के 4 मोर इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ द लाइफ. दैट द फर्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ इज व्हेन यू आर अ सर्वाइवर, है ना, जब आप बिल्कुल एक सर्वाइवर होते हो, जस्ट लाइक एनिमल्स, है ना. यू आर ईटिंग, you are fighting for food. If you are getting your food, then you are relaxing, you are reproducing, you are sleeping, that's all. खाना, पीना, सोना और रिप्रोड्यूस करना, यही हमारा काम होता है ना, वो होता है
जो नंबर 1 लेवल के लोग होते हैं ना, जो सर्वाइवर लेवल के होते हैं, वो होते हैं, वो इसी चीज को फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद वो लेवल आता है लोगों का जिनको थोड़ा बहुत पता होता है कि नहीं, वी शुड हैव गोल, वी शुड हैव अ डेस्टिनेशन टू गो, है ना, हम लोगों को किस दिशा में जाना है, अपनी गाड़ी को वहां पर लेके जाना है। तो इसलिए उनको पता चलता है कि नहीं, वो अपना गोल लिस्ट बनाते हैं, चीजों को विजुअलाइज करना शुरू करते हैं। उनको पता चलता है कि कुछ कुछ तो विजुअलाइजेशन जैसा चीज होता है। ऑल ऑफ अस हु डिड नॉट कम टू दिस जर्नी अर्लियर, वी ऑल्सो न्यू ना, हम लोग सोचते थे, जैसे कि मान लो रितु जी यहाँ पर एंटरप्रेन्योर है, वो बहुत अच्छे बिजनेस वुमेन है, तो वो जो भी अपना काम करती हैं तो डेफिनेटली एक प्रोटोटाइप पहले बनाते हैं हम लोग सारे। जो कंपनी जो है, मान लो कंस्ट्रक्शन में जो भी है, या कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, सबसे पहले उस प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाते हैं कि हाँ, ये वाली चीज है, ये इस तरह से काम करेगी। तो जैसे ही आपने वो विजन बनाया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसका पिक्चर हो गया। तो आप, इवन इफ यू डू नॉट नो व्हाट क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इज, बट स्टिल यू आर डूइंग इट, यू आर डूइंग इट इन योर mind, right? Because you are creating the prototype of that particular thing. So that is the second level of people जिनको इसका पता होता है। उसके बाद कुछ लेवल के लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये करते करते उनको लोगों को समझने की, क्योंकि कम्युनिकेशन बढ़ता है ना, व्हेन यू आर नॉट इन द सर्वाइवल मोड, यू विल बी कम्युनिटी पीपल, बिकॉज जैसे कि सौम्या ने बताया कि कम्युनिटी पीपल आर द पीपल हु आर लिविंग द मोस्ट, वो सेंटेनेरियंस। तो जितने भी सेंटेनेरियंस हैं उनमें एक कॉमन चीज पाई जाती है, जापान में, इटली में और ग्रीक में, जहां जहां सेंटेनेरियंस हुए हैं, वहां पर एक कॉमन फैक्टर सबको मिला था, दे आर हैप्पी बिकॉज दे वर लिविंग इन अ कम्युनिटी। सो when you live in community, you meet different types of people. There will be all type of people. सब्जी मंडी में आप आलू भिंडी सब्जी लेने जाते हो तो हर तरह की, कुछ भिंडी छोटी मिलेगी, कुछ भिंडी बड़ी मिलेगी, एक ही प्रजाति के लोग होंगे लेकिन सबके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। सब में वही चीज है, बस ये स्किन उतार लिया तो सबके अंदर वही ब्लड फैलता होता है, एंड एवरीथिंग इज लाइक दैट ओनली, बट स्टिल गॉड हैज मेड अस डिस्टिंक्ट। आवर fingerprints never match, our denture never matches to any other person in the entire world actually, so we are all different. So when we are all different, we have different kind of emotions also. So when you're living in community, you get to know people, you get to understand people, and sometimes you do not understand people. But that doesn't mean that if you are not understanding an equation, that equation is wrong. कभी कभी मैथमेटिक्स का सवाल ऐसा आ गया, फिजिक्स का सवाल ऐसा आ गया, लाइफ का ऐसा सवाल आ गया जिसका आपको आंसर नहीं पता, तो आप उसको रॉन्ग आंसर बोलकर स्पेसिफिकली बोल नहीं सकते हो कि रॉन्ग आंसर है। नो, इट्स नॉट रॉन्ग, इट इज जस्ट दैट यू डू नॉट नो द आंसर, जस्ट दैट। So you start understanding people. You develop that nature of being compassionate, maybe. कंपैशन आपके अंदर आता है, एम्पैथी आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। बट इसी के साथ साथ अगला लेवल आता है लोगों का, जिनमें उनका इंट्यूशन एक्टिवेट होता है, इंट्यूटिंग पावर एक्टिवेट होती है। बट आपको पता है बहुत सारे लोग उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, जस्ट ये सेकेंड और थर्ड लेवल के बीच में रह जाते हैं, क्योंकि वो एक स्यूडो पॉजिटिविटी में आ जाते हैं। स्यूडो पॉजिटिविटी मतलब उनको थोड़ा बहुत पता चल गया, काफी सारे गोल्स उन्होंने लाइफ में अचीव कर लिए, तो उनको लगता है बस यही लेवल है, यही मेरी दुनिया, आई जस्ट वॉन्ट टू फील गुड ऑल द टाइम, आई डू नॉट वॉन्ट एनी नेगेटिविटी इन लाइफ, आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रीद इन ओनली ऑक्सीजन। ऐसा हो सकता है? डू यू थिंक दैट योर बॉडी डज नॉट हैव एनी कार्बन डाइऑक्साइड? नो, योर बॉडी हैज। आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन लेने की इच्छा ही नहीं होगी आपके अंदर। योर लंग्स आर वर्किंग डे एंड नाइट so that you can have an exchange of air, right? If there was no carbon dioxide, oxygen will not be there in the atmosphere only, your body will not have oxygen that time. So negativity is important to bring that positivity in your life. So you cannot stay blinded to negativity. Negativity is important for us and it will come to our life. So every time where then there is any kind of situation, आपको लगता है कि I am very mature, I am very calm as a person, I am at peace with myself and with this whole world, बोलते हैं ना हम लोग ये affirmation के I am at peace with myself and with everyone and with the entire world, हम लोग ये बात बोलते हैं। but are you really at peace within yourself? Just ask yourself that. I really doubt that any of us have reached that particular place where we are at peace with ourselves, with the world. No, we are not yet at that place, and not, I do not know any person in my vicinity that that person has reached there. महात्मा बुद्ध पहुंचे थे, उनको मैंने कभी देखा नहीं है। So, what exists in this society, and especially amongst the people like us
who know that we have got many things. We know the word manifestation, we know the word positivity. We also are dwelling into something called as pseudo positivity or toxic positivity, which is जैसे love in the air होता है ना, वैसे that is in the air right now. Everyone is talking about manifestation, everyone is talking about stay in the positive zone, do not go to the negative zone, बोलते हैं ना सभी. सो हम लोग उसी चीज का शिकार हो रहे हैं. हम लोग इसी कारण से खाली नंबर 2 और 3 के बीच में फंसे पड़े रह जाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट एम्ब्रेसिंग पीपल, एम्ब्रेसिंग सिचुएशन द वे इट इज. Just suppose you are standing in the line of the metro and someone just pushed you, elbowed you, आपको हटा के चला गया. Will you be able to understand that? यार हाँ हाँ हाँ, पालक दाल के साथ. नहीं, एक सेकेंड. See, this is a test for me again. This is a particular live test for me that I am talking about this particular thing. And right now, every time my cook will come, I have kept a mushroom और पालक मैं साथ में रख के आई हूँ that ये बनाना है, but she is here की asking किया. So this is a test for me. So I have not reached to that level where I can say that I am like Buddha. Buddha means I am the happiest soul in the world, where I accept everything and everyone the way it is. But I can say that I am into the level that I can very happily, very smilingly embrace that person. I have got many clicks with her. I get to know about her. She gets to know about me. But then there are points when I also dip down. So if you think that you never ever dip down on any situation, you embrace every situation the way it is. Your worker is telling something to you, you are going in a crowded metro and someone is elbowing you. किसी ने आप बहुत भीड़ भड़के वाले बस में ट्रैवल कर रहे हो, है ना. और बस में हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग बस में ट्रैवल ही ना करते हो, कार्स में ट्रैवल करते हो, बट आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, बहुत जरूरी है आपको हॉस्पिटल पहुंचना. बट दैट टाइम ओनली पर्टिकुलर पर्सन है, बच्चा आया, उसने आपको ओवरटेक कर लिया और आपकी गाड़ी वहां पर अटक गई. तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? तो क्या आप ग्रैटिट्यूड कर पाओगे? आना चाहिए उस समय. आपको अगर आना है गुस्सा, आपको अगर उस समय आपको लग रहा है कि नहीं, दिस इज सो इंपॉर्टेंट फॉर आई हैव टू रीच दैट प्लेस इन दिस पर्टिकुलर टाइम, बट दैट पर्सन हैज जस्ट क्रॉस मी एंड यू आर हैविंग इफ अ स्मॉल बिट ऑफ थिंग ना, दैट मीन्स यू नीड टू फॉरगिव एंड एक्सेप्ट दिस सिचुएशन ऑल्सो. चाहे आप हॉस्पिटल में जा रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट काम से, किसी को लेकर किसी को मिलने, फिर भी आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये जानते हो कि परमात्मा की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता. तो परमात्मा कहाँ है? हमारे अंदर है ना. हमारे अंदर जो बैठा हुआ है उसको पता है ना कि दिस सिचुएशन इज हैपनिंग. सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट. एक्सेप्टेंस अगर आपको किसी भी इंसान के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए और हर एक मुकाम पे आ जाती है, वेदर द थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू और नॉट, that means you do not need forgiveness. Otherwise, you need forgiveness. So, if you are staying in that zone of pseudo positivity, this becomes more and more important for you to train yourself to practice forgiveness. And it is a practice. You will definitely reach that place. We all are in there's a wide range of people. Some of the people are very authentic, very authentically they'll say that no, I have not reached that level. Some will say that I have reached that level. Some will say मैं अभी इतनी सी level पे हूँ. Some will say कि मैं अभी यहाँ पर हूँ. But to tell you the truth, जितना हम लोग समझते हैं इस चीज को, जितना हम लोगों ने इसका डीप स्टडी किया है, उतना हम लोगों को पता है. आई कैन से दैट नन ऑफ अस हैज रीच्ड दिस लेवल एंड दैट इज व्हाई we should not be shameful about it, because again, being shameful about it, being having any kind of disappointment, any kind of resentment, any kind of grief, कुछ भी अगर ये वाले तत्व हमारे अंदर आते हैं या हमारे अंदर ऑफन आते हैं, वेरी ऑफन इफ वी पुश आवरसेल्व्स टू द मोड ऑफ सर्वाइवर, वी आर नॉट सर्वाइवर्स. यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, एक भी सर्वाइवर मोड में नहीं है. सभी के सभी सेकेंड और या थर्ड लेवल में आते हैं, सभी के सभी, है ना. तो अगर लेकिन हम लोगों को कुछ सिचुएशन लाइफ में ऐसे आ जाती है एंड वी गो टू द सर्वाइवल लेवल वेरी ऑफ्टन, that means that definitely we need to practice forgiveness. When you say that it's okay, I have moved on, I have forgiven that person, everything is happening for a reason, everything is happening for my highest, especially the affirmations kind of thing that we do now.
So all those things are definitely important for us, but at the same time, it is as important to have yourself completely detoxed also. Detoxification that we do for our food, we should do for our mental well being also. And for that, forgiveness is definitely required. उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि हम लोग पॉजिटिविटी में हैं, हम लोग नहीं सुनते हैं, हम अपनी एनर्जी को चेंज करना समझ गए हैं, सीख गए हैं, लेकिन क्या फिर भी कभी कभी आपके इमोशंस, कभी कभी मतलब ज्यादा वाला, कभी कभी आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, आप चीजों को ओवर एक्सप्लेन करने लग पड़ते हो किसी के साथ, किसी भी रिलेशनशिप में। इफ यू आर ओवर एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ, that also means that you are over explaining to yourself, अपने आप को, उसको नहीं बता रहे हो कुछ, आप खुद को बता रहे हो, because the outside world does not exist only. If you can consider yourself as the person, then what is the need of that? जैसे सौम्या ने बताया, फॉरगिवनेस करने का मतलब है कि आप अगर फॉरगिव, हम लोगों ने बचपन से यही सीखा है ना कि माफ करने वाला हमेशा ऊपर होता है ना, कि माफ करने वाला पर्सन तो भगवान से भी ऊपर होता है, इसलिए हम लोगों को माफ करना चाहिए। बट एक तरफ हम ये बात भी बोलते हैं कि देर इज नो ऊंच नीच, सभी बराबर हैं, तो कोई किसी से ऊंचा तो हुआ ही नहीं। मैंने उसको माफ कर दिया मतलब मैं ऊपर आ गई, उस पर्सन को मैंने माफ कर दिया। तो जो परमात्मा ने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं है, कोई डिस्टिंक्ट फिगर है ही नहीं। लंगर में बैठकर हम सारे के सारे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे कोई बिलियनर हो, चाहे कोई फकीर हो, सारे अगर एक साइड बैठ के खा सकते, तो उसका मतलब क्या है कि परमात्मा के आगे हम सभी बराबर हैं। तो फिर ये ऊपर नीच कहाँ से आ गया? हम फॉरगिव कर रहे हैं यानी कि हम ऊपर हो गए, अगला बंदा नीचा हो गया, ये हुआ ना उसका मतलब। सो फॉर दैट ऑल्सो that person has said that master never forgives. Why? Because he doesn't think only कि किसी चीज को मुझे फॉरगिव करने की जरूरत है, क्योंकि वो चीज है ही नहीं कोई। मैं हर किसी पर्सन को, हर किसी सिचुएशन को जैसे वो है वैसे एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। आई ऑलवेज स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपको अगर पास्ट में, अगर मैं से मान लो मैंने आपके साथ कुछ हर्टफुल काम किया है, मुझे देखकर आपको उस बात की याद आ जाती है, एंड यू स्टार्ट कनेक्टिंग डॉट्स। मे बी एक बार से नहीं, बार बार में ऐसा हुआ, मे बी पहली बार नहीं, पांचवी बार ऐसा हुआ, एंड यू आर कनेक्टिंग डॉट्स। तो इसका मतलब क्या है ना, आपको जरूरत, एंजाइटी होती है, कभी कभी आप ऐसे फ्लैबरगैस्टेड हो जाते हो, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हो जाते हो, या आपको एग्जॉशन हो जाता है, आपको ओवर एक्सप्लेन करके ना पीपल प्लीज करने की आदत पड़ जाती है। करना पड़ता है भाई, पीपल प्लीज करना पड़ता है, उसको बुरा ना लगे। अब आपको अगर ये लगता है कि उसको बुरा ना लगे, उसको अच्छा लगे, या उस पर्सन को ट्रस्ट हो, आपको वो ट्रस्ट को पैदा करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, है ना, हम लोग बोलते हैं ना, आई बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। No, you do not need to over explain only. If something is there within your mind, within your body, which says that I have to over explain because क्या पता उस पर्सन को कैसा लग रहा होगा, इसका मतलब आपने दो चेहरे लगा रखे हैं। वो जो एक चेहरा है वो कंपैशनेट पर्सन का नहीं है, वो पीपल प्लीजिंग का है। तो अगर आप पीपल प्लीजिंग करते हो, आपके लाइफ में रिपीटेड पैटर्न्स के हिसाब से चीजों को होती जा रही है, दैट मीन्स दैट यू आर नॉट एट पीस। It is not a good news, definitely, but that definitely means that you are not at peace. You are in pseudo positivity or toxic positivity, if you can say, if I can say like that. It's just like घर में बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, और कचरे के ऊपर ना आपने ढक दिया उसको, बिकॉज ऑलवेज वी नो ना दैट गार्बेज शुड बी केप्ट इन अ क्लोज्ड बिन, है ना, दैट बिन इज क्लोज डेफिनेटली। बट दैट बिन में से आपको स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, आपने एयर टाइट कंटेनर में भी कितना ही उसको पैक कर लो। तो आपने क्या किया, नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल पॉजिटिविटी में, आई डू नॉट वांट टू गो देयर, मैं अपने पास्ट में नहीं जाना चाहती। याद ही क्यों करना है पास्ट को? जख्म बहुत सारे लोगों का होता है, पास्ट के जख्मों को कुरेदना ही क्यों है? मतलब क्या कर रहे हो आप? मतलब आप ये कर रहे हो, वो कचरे का डब्बा पड़ा हुआ है, ढक्कन उसका बंद है, पर आप उसके चारों तरफ परफ्यूम छिड़क रहे हो जाएगा क्या सटल? वो आएगी ना, परफ्यूम एरोजोल होता है। एरोजोल का मतलब पता है ना आपको, कि एरोजोल है वो दैट डिसिपेट्स इन एयर, और वो चला जाएगा, गायब हो जाएगा, दैट्स वोलाटाइल इन नेचर। तो आप वो एरोसोल छिड़क कर आप उस परफ्यूम की स्मेल को दबाना चाहते हो, लेकिन वो दबता तो है नहीं ना। वो आपके शरीर में जो फॉरगिवनेस है, जो आपके शरीर के अंदर जो रिजेंटमेंट है, जो ग्रज है, कहीं आपके पेट के अंदर छुपा हुआ रह जाएगा, अनकहा दर्द होगा, कभी पेन होगा, कभी आपके बैक में होगा, कभी आपके थ्रोट में होगा, कभी आपके दिल में किसी दर्द के रूप में होगा। सो एवरी प्रॉब्लम इज गिविंग यू सम काइंड ऑफ बैगेज, एंड दैट बैगेज यू आर कैरिंग। आपसे हुआ,
बहुत अच्छा सा इंस्टाग्राम में उस दिन पोस्ट आया था, बहुत ही बढ़िया था। तो क्या था ना, और बाय चांस क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने भी वो मुझे फॉरवर्ड किया, और मैंने भी उसको उसी को तभी देखा था। डेफिनेटली होता है ना, हम सब एक ही उसमें ग्रुप में होते हैं, एक ही फीड में हमारे फीड्स कॉमन होते हैं। तो आपका और मेरा उसी चीज के ऊपर नजर जाना, इट डेफिनेटली मीन्स दैट वी नीड टू वर्क ऑन दैट, या फिर गॉड इज गिविंग अस सम क्यू। तो मेरे को ये क्यों मिला कि हम लोग जो बोझ है ना, हम लोग अपने बच्चों को हम लोग देते जाते हैं, हमारे बच्चों को हमारे विल में जो भी चीजें हमारे पास है वो सब कुछ मिलता है ना। बट विद दैट वी आर ऑल्सो गिविंग दम बर्डन, है ना। वो बर्डन हमारे एंसेस्टर्स से, शायद हमारे पेरेंट्स में आया, हमारे पेरेंट्स या फिर उनके विसिनिटी में जो भी लोग थे उनसे हम पे आया। तो हम पे तो जाके स्टॉप होना चाहिए, बिकॉज वी आर इन द लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, ऑफ सेल्फ मास्टरी। सो दिस थिंग शुड नॉट go to the next generation. We are not like animals that we will be actually carrying over all those things and we'll pass it on. No, it has to stop somewhere. So if you think that you are playing an instrumental role in your family and you are taking charge of your family and for yourself, you should definitely try to practice forgiveness every single day until you reach to the level where everything is acceptable to you. और अभी तक अगर हम लोगों को लगता है कि भाई ये चीजें हो चुकी हैं, मैं तो पॉजिटिविटी में रहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। रॉन्डा बर्न ने भी अपनी अगर बुक में याद हो, तो पावर बुक में उन्होंने ना 51-49 का बताया था। 51% टाइम यू आर इन द पॉजिटिव जोन, एंड 49% अगर टाइम आप नहीं भी हो तो चलेगा। तो दिस इज द फिगर that Rhonda Byrne has given and many other people also have given. तो 51:49 का जो पार्टनरशिप है ना, वो हम लोग अगर जिन्होंने एमबीए पढ़ा है, मैनेजमेंट जिन्होंने पढ़ा है, उन्होंने भी देखा होगा कि जॉइंट वेंचर किसी का होता है ना, तो उसमें 51:49 का रहता है, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, गवर्नमेंट के साथ कोई पार्टनरशिप कंपनी में आ रहा हो, कोई भी हो, पीपीपी वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो उनमें ऐसा होता है, किसी किसी में 51:49 होता है। तो यही अगर रहा तो आपको लगता है वो पार्टनरशिप कभी टूटती नहीं है? टूटती है ना, उसमें भी टूटने के होते हैं ना असर। इसी तरह टूटता है हमारा आत्मविश्वास, इसी तरह टूटते हैं हमारे सपने, और इसी तरह टूटता है हमारा शरीर जब हमारे शरीर के अंदर कोई रोग इस तरह की हो जाती है, फाइनेंशियल क्रंच आ जाता है, हमको पता नहीं चलता। ऑल दीज थिंग्स ऑफ ग्रजेस डू कॉज फाइनेंशियल क्रंच इन आवर लाइफ। रिलेशनशिप का तो पता ही है, फॉरगिवनेस का रास्ता ही रिलेशनशिप से आता है, और क्लियरेंस नहीं हो पाती है। हम अगर क्लियर करेंगे पूरी की पूरी तरह से अपने आप को, तभी तो वहां पर स्पेस क्रिएट होगा ना। आप मैनिफेस्टेशन का बीज तो तभी डाल पाओगे ना अपने अंदर। सो यू नीड टू मेक दैट स्पेस इन योर सेल्फ टू टेल टू द यूनिवर्स दैट यस, नाउ आई कैन से दैट आई एम एट पीस विद माई सेल्फ। तो ये है। अदरवाइज तो ये इमोशनल बैगेजेस के लिए ना आप हर बार ईएमआईज भरते रहोगे। ईएमआईज किस चीज के होंगे? कि आपको इंटरनली जो है ना, आपको पीस नहीं मिलेगी। आपको रुक रुक कर कभी कभी दिन में, महीने में आपको 10 बार ऐसे सिचुएशंस आएंगे कि आप फॉल डाउन कर रहे हो। तो आप फॉरगिवनेस करते करते क्या होगा ना, आपकी वो फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा घट जाएगी, और आपको कहीं और से नहीं, अपने इंट्यूशन से आपका इंट्यूटिव माइंड ऐसा क्लियर हो जाएगा ना, ऐसा आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा ना, आप खुद के साथ जुड़कर, whenever there is a thing of happiness, whenever there is a thing of celebration, you will sit with yourself and you will celebrate and say thank you to the universe. And whenever some unwanted thing happens in your life, then that time also you will not go and wander here and there and do multiple type of practices. You just will sit with yourself, come into awareness and say that yes, I am not feeling good right now. Okay, this is the situation, and I accept that I am not feeling good right now. What to do? That means that I have to take an inspired action. Inspired action can be to take, to keep myself up. I mean to lift myself to the zone where I'll be thinking good, because I have to accept that person or the situation the way it is. So that much confidence you have to build, and you have to get into that peaceful zone where you can decide for yourself. No one else is going to decide for you. No one else is going to be your own guide. And you have to reach to the level of being your own guide. And that can happen only when you're clear in your mind and you have forgiven everyone, a past, present, every situation, whatever it is. So there will be no fear also. डर कहाँ से होगा?
डर होगा ही नहीं ना। जब हमने एक्सेप्ट ही कर लिया इस बात को कि भाई ये चीज हो सकती है, या चीज जो चीज हो रही है मेरे साथ, आई एक्सेप्ट दैट सिचुएशन, आई एक्सेप्ट दैट पर्सन, कि उस पर्सन ने मेरे को चाहे कुछ ही किया हो। आई वाज जस्ट डिस्कसिंग इट विद द कॉल इन अ कॉल जस्ट 2 hours back with some person, that one person I told you maybe कि that person actually is a very very close person to me, close relative, my own cousin. He once molested me, ठीक है। उन्होंने ऐसा किया और मुझे बहुत खराब लगा था। मैं कोई माता तो हूं नहीं कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया सिचुएशन को। मैंने किसी को बताया भी नहीं था अपने घर में। बट देन मैंने उनको भी ये बात जाहिर की कि आई डू नॉट एक्सेप्ट इट। जाहिर की अपने शब्दों से नहीं, अपने नॉन वर्बल लैंग्वेज से, ठीक है। अपनी मॉम को भी मैंने थोड़ा सा इंडिकेशन दे दिया, माई मॉम कुड अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज देयर, है ना। उसके बाद that person actually did a lot. He's a very good person, very good person. But at that point in time, he slipped off, है ना, और उन्होंने गलती से वो चीज कर दिया था। तो फिर क्या हुआ, उस पर्सन के बाकी चीजें इतनी अच्छी थी, इतनी ज्यादा अच्छी थी, इतना ज्यादा हेल्पफुल पर्सन, सिर्फ मेरे लिए नहीं, बाकी सब के लिए। जहां वो जाता है अपने ऑफिस में, अपने फैमिली में, सबको जोड़ के रखने वाला बंदा, ऐसा पर्सन है। वेरी मच मैरिड, वेरी हैप्पीली, है ना। You know what? I have completely forgiven that person. Completely. No grudges at all. Nothing at all. But if I still remember about that incident, to give you an example of it, that means I have something. थोड़ा मोड़ा तो शायद होगा. But that he is the person who calls me the most, even more than my brother calls me, है ना। हमेशा बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मेरी मदर इन लॉ के टाइम पे वो आए, सब कुछ किया, हर कुछ, मतलब बहुत अच्छे हैं। मेरे मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं वो, मेरे बेस्ट फ्रेंड है। एंड इफ यू कैन थिंक दैट यू कैन डेफिनेटली go and hug that person who has done that kind of harm to you, that means that you are there to the level where you have forgiven that person, that I can say I have forgiven that person, because I can eat with him, I can sleep with him, I can hug him, I can like he comes here, मेरे घर पे आते हैं उसके बच्चे मुझे, मतलब बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। मैं कैलकाटा जाती हूँ ना, अपने घर से ज्यादा उनके घर में टाइम स्पेंड करती हूँ, बिकॉज आई हैव सो मच ट्रस्ट in that person who wants that kind of heinous crime with me. Why? Because of the forgiveness ka level only. This is my true story, and I do not shy away from sharing it with anyone. Why? Because I have accepted the situation that yes, it has happened and it is me. This is me, and I accept everything the way it is. So, this is the level, this is the kind of condition that we have to reach. I am yet in this journey, learning every single day from you guys. Definitely, so many elders here who are with every action and every deed, they are teaching me. Every person who is sharing definitely teach us something. So yes, so this is the thing. If you still have the questions का आंसर अगर आपके लिए नो में आ रहा है, and you still think that there are certain things and you are doing affirmations for that, you are doing gratitude for that, लेकिन if कथनी और करनी में फर्क हो गया, आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा, चल झूठी, क्या बोल रही है तू, तूने कहा माफ किया उसको, तो बोल ले आई एम एट पीस विद दैट पर्सन, विद दैट, नहीं तूने अंदर से तो माफी नहीं किया ना उसको। इमोशंस, इमोशंस आर इंपॉर्टेंट, इमोशंस आर फ्यूल। तो अगर हमने, ये बात हमें पता है कि एंगर हम लोगों को नहीं करना चाहिए, या हम लोगों को सैड फील नहीं करना चाहिए, या फिर हम लोगों को किसी के लिए भी ईगो नहीं होनी चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब तो हम लोग परमात्मा की क्रिएशन को उंगली उठा रहे हैं। Because God has said now that मेरा बच्चा, you have to be grateful for everything in this world. You have to accept everything, every single person, every single situation. If I am meeting with an accident right now, I have to accept it. It had to go like this only. So I would like to give an example of our very lovely participant. बहुत ही प्यारी हमारी friend है. She happens to be a psychologist in Bangalore. तो बहुत अच्छी कंपनी भी उनकी रन करती हैं, वो एनजीओ रन करती हैं। तो हम लोग ना कोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि वी वर डिजाइनिंग अ कोर्स। एक्चुअली आप लोगों को पता होगा, इससे पहले हम लोगों ने एनजीओ के साथ कोर्स किया, बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल वो कोर्स रहा था हमारा। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कोर्स, देन वी आई एंड सौम्या वर डिस्कसिंग दैट थिंग विद हर। तो तो उसने कहा कि लेट अस जस्ट, दीदी शी डेफिनेटली डज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अस, सो उनका दीदी जस्ट ब्रिंग दिस। मैंने कहा यार उनको समझ में नहीं आएगा, है ना। उनको हम लोग लेकर तो आ रहे हैं उनके लिए कोर्स, पर ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, उनको शायद उतना समझ में नहीं आएगा। तो पता उसको उसने क्या कहा उस टाइम पे, उसने मुझे ये कहा कि दीदी
If we are offering this course to them, if they are getting this offer from us, that means that universe wants them to get into this. एंड इफ दे वांट टू स्टे ब्लाइंडेड टू दैट, होता है ना कई बार, वही वाले शिव जी वाली बात याद आ जाती है मुझे, इफ दे वांट टू कीप देमसेल्फ ब्लाइंडेड ऑन दैट एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड, दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम, दैट इज देयर प्रॉब्लम. Because God, if this thing has come into my mind, into your mind, into Soumya's mind, that definitely means planter is who? Who's the planter? Universe is the planter. Universe has planted that seed in our minds. So that means it is there for that, those people only. अब वो आते हैं सेशन के अंदर, वो समझ पाते हैं या वो नहीं समझ पाते हैं, वी डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट दैट. व्हाई? बिकॉज दिस इज अगेन यूनिवर्सेस ऑर्केस्ट्रेशन. जब उनको समझ में आएगा तब उनको समझ में आएगा. तो आई वॉज हैविंग अ प्राइवेट टॉक विद हर, उसके अलग से जब बात करी तो मैंने उसको कहा, दीपिका मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी एंड दिस थिंग रियली टच्ड मी. इज शी, यू नो व्हाट शी सेड, दीदी आई हैव लर्न दिस फ्रॉम यू. And I do not remember because we are not us when we are taking the one-to-one sessions. We are universal people. So you had told me this once. So this is what. So if this thing has come to you and you understand about it and you are taking it as an offer of the universal talk, that means it is for you. Otherwise, if you think that you have definitely reached to the place where you accept everyone and everything as the thing is, as the person is, that means you are done and you are in that particular place where Buddha is and you do not require any kind of forgiveness practice. So yes, this is all from my desk, and thank you so much, guys, for listening to me. This is the brutal and unapologetically, I would say that this is the truth that all of us need forgiveness for sure. Thank you so much. Spectacular. Beautiful. Thank you so much. Thank you, guys, for listening to us. Yeah, thank you so speak much. so much. We speak And, really so much. and it was for us also, you guys think half of the time हम अपने आप को ही देख रहे होते हैं और अपने आप को Exactly. समझा Half, रहे more than half of the time we are talking about us. So जब हैं। भी मैं सौम्या कभी भी कोई सेशन ले रही होती है ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि शी इज गोइंग थ्रू दिस, तो चलो ठीक है, I am Yeah. going through something. So that's what, universe make us say all that through our mouth. Why? Because people need it. And when people need it, people is nowhere. Outside world doesn't exist only. That means I need it. We need it. So yeah, that way. So thank you so much for listening to us. And we really, really, really are so, so, so deeply grateful to each and every one of you for your love. So before we take Ritu ji's question, let's just clarify हमारा जो कोर्स का स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा हमको क्लैरिफाई करना है हाँ. कि क्यों ये ऐसा है. एंड देन we'll open the session, we'll exceed by 5-10 minutes, but we will do it. तो जो कोर्स है, जो 30 days का है, एक कोहर्ट है. आई मीन कोहर्ट मीन स्मॉल बैचेस का मोड है. we want to affect maximum people at the shortest amount of time. ये हमारा गोल है अभी. ठीक है, तो कैसे होगा? हम रोज सुबह तो माइंड जिम में मिल ही रहे हैं, एंड इट इज मैंडेटरी कंपल्सरी फॉर पीपल हु आर टेकिंग दिस कोर्स ऑफ 30 days की वो हर दिन शो अप करना ही करना है माइंड जिम में. देर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट. ठीक है, इफ यू वांट टू बी, इफ यू वांट टू गेट पैसा वसूल एक्सपीरियंस है ना फ्रॉम दैट 30 day, यू हैव टू. ठीक है, दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड, बिकॉज वो टच पॉइंट है हमारा, दैट इज इंपॉर्टेंट टच पॉइंट. ठीक है, सेकेंड टच पॉइंट है हमारा, हर थर्सडे को आपको एक वीडियो मिलेगा जहां पे बहुत ज्यादा कंटेंट रहेगा, कभी प्रैक्टिकल्स भी रहेंगे. एक तरीके से समझ लेना, एक क्लासरूम एक्सपीरियंस होगा जहां पे आपको भगवान खुद आके कुछ सिखा रहे हैं, which is we are going to guarantee you is just something that you have never heard before about forgiveness, about yourself, about whatever you're practicing, you will never have heard. ठीक है, ये उसमें भी आपके लिए एक एक्शंस पॉइंट्स आएंगे कि क्या क्या करना है. यू विल हैव योर ओन प्रॉब्लम. जैसे हमको टीचर है ना फॉर्मूला सिखा देती थी ना, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये सिखा देती थी और एक सम दिखाते थे, है ना, कि ऐसे सॉल्व करना है. देन यू यूज्ड टू टेक दैट
टू होम, आप घर लेके जाते थे, और जो एक्सरसाइज के सम्स होते थे ना आपके खुद के, आप उस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप सॉल्व करते थे अपने खुद से, है ना। आपको वो चीज करना है। हम फॉर्मूला देंगे आपको, आपको वो खुद से प्रैक्टिस करना है। दैट इज वेरी, बिकॉज फॉरगिवनेस आपको करना है। हम हम बोल ही सकते हैं, हम आपको पानी की तरफ लेके जा सकते, पानी पिला नहीं सकते हैं। तो दैट्स द थिंग। थर्ड इज, हर मंडे को टेंटेटिवली, अभी हमने 6 o'clock फाइनलाइज किया है, जस्ट टू कीप इन माइंड कि सबकी अवेबिलिटी के हिसाब से, मंडे को 6 p.m. हम वी आर डूइंग हॉट सीट कोचिंग। यानी कि किस, हमने वो थर्सडे एक्सरसाइज दिया, फॉर्मूला दिया, आपको होमवर्क दिया है कि आपको ये करना है। आप जब होमवर्क कर रहे हो तो आपको लगेगा ना कि अरे मेरे को मैम ये सम सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ बट ये वो आंसर नहीं दे रहा है, आंसर शीट में आंसर अलग है और मेरे को आंसर अलग आ रहा है ना। वो आता था, आप ट्यूशन में जाते थे, टीचर्स को पूछते थे, तो टीचर आप क्लासरूम में ही आपका ही प्रॉब्लम वो सॉल्व करके दिखाते थे ना ब्लैक बोर्ड पे, कि बच्चे से आपकी प्रॉब्लम पूछने से कितने सारे लोगों को, जिनको आंसर नहीं मिला था, उनको आंसर मिले। मिले कि नहीं मिले? कभी आपको भी ऐसे हुआ है, आपने पूछा नहीं बट किसी ने और ने पूछा और आपका सॉल्व हो गया? सो दैट इज हॉट सीट कोचिंग। आपके वजह से किसी और को मदद होना, दिस इज ग्रुप एनर्जी हीलिंग। एंड सपोज आपको आंसर मिल गया है, ठीक है, बट आप देख रहे हो कोई कष्ट में है, कोई दुख में है, किसी को वो हो नहीं रहा है, तो आपके दिल से दुआ तो निकलेगी उनके लिए कि ये ठीक हो जाए, इनकी मदद हो जाए। दैट एनर्जी इज गोइंग टू हेल्प दैट पर्सन इन हीज और हर्स फॉरगिवनेस जर्नी। सो दैट वी वांट टू कैप्चर फॉर यू, दैट इज व्हाई इट इज अ बैच सिस्टम दिस टाइम। ठीक है, तो मंडे को शाम में मिलेंगे जहाँ पे हॉट सीट कोचिंग होगी। हर एक पर्सन, अगर किसी का सॉल्व नहीं हुआ है, हम उसको लेके उदाहरण के साथ उसको हेल्प करेंगे, उसके साथ साथ सभी को भी हेल्प हो रहा है। अगेन मैंडेटरीली उसको अटेंड करना ही करना है। इसके अलावा हर दिन आपको टास्क दिए जाएंगे, एक्टिविटी दिए जाएंगे, टू रिलीज दोज इमोशंस आउट ऑफ योर बॉडी, उसको भी करना ही करना है। इसीलिए इसके टच पॉइंट्स कम है, बिकॉज यू हैव टू रिमूव टाइम टू डू दीज एक्टिविटीज। यू हैव, आपका दिन तो चल ही रहा है, आपके काम चल ही रहे हैं, है ना। इसके अंदर आपको इसको फिट करना है, ताकि आगे जाके आपको ये करना आना है। इट्स नॉट जस्ट फॉर 30 days, राइट, इट इज फॉर योर लाइफ लॉन्ग। और अभी आप आ रहे हो क्योंकि यू हैव अ पास्ट थिंग्स, ऐसे हम मान के चलते हैं ना, राइट, हमारे पास्ट का बैगेजेस है, पास्ट का है। कोई गारंटी के साथ कह सकता है कि फ्यूचर में नहीं आने वाला है? नहीं ना। सो यू नीड समथिंग, राइट, यू नीड अ सोल्यूशन पैटर्न, कि ये सम ये प्रॉब्लम आएगा तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी। तो आपको एक बुकलेट मिलेगा, वर्क बुक मिलेगा, जो आपका मैनुअल रहेगा। ये मैनुअल जब तक आप यूज करोगे, आपको कहीं और पे पूछना, जाके करने की कोई जरूरत नहीं है। सो यू विल हैव अ वर्कबुक विथ यू दैट यू कैन यूज एनी टाइम। अगर आपका फ्रिज खराब है, आप पहले खुद से फिक्स करने की कोशिश करोगे ना, मैनुअल चेक करोगे, है ना, क्या गया है क्या नहीं है, ट्राई टू फिक्स इट। दैट इज द मैनुअल दैट वी वांट टू गिव, सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज। अरे मेरी सासू माँ ने फिर से ऐसे किया, मैं तो फादर इन लॉ के ऊपर फॉरगिवनेस किया, मैंने मदर इन लॉ पे किया ही नहीं है, मैं कैसे करूं, किस गुरु के पास जाऊं? नो नीड, यू विल हैव दिस वर्कबुक विथ you to exercise any future problems also. ओके, सो दैट जो हमने बोला आपको, आप एक दिन इस मुकाम पे पहुंच जाओ जहां पे आप बोलोगे मेरे को कुछ चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब मस्त है, मैं मजे में हूं। दैट्स इट। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, एंड वी आर देयर, एंड यू नो बोथ ऑफ अस एंड आवर टीम ऑल्सो, वी आर देयर फॉर यू 24/7। रियली, एनर्जेटिकली तो हम 24/7 है ही है। ऑफ कोर्स हमारा ऑफिस आवर्स जो है, बट वी विल बी देयर। और हमने ऑलरेडी ये इंटेंशन रख लिया है
कि जो कोई भी इसमें जुड़ रहा है उसका तो ऑलरेडी सब क्लियर हो चुका है. सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट टू मैनिफेस्ट इन रियलिटी, दैट्स इट. ठीक है. सो एनीबडी, जैसे प्रिया ने बोला, एनीबडी हु फील्स whatever she told is true, whatever you heard to be true, and if you feel like you should join, you're welcome to join. We are still open. 1 June से स्टार्ट होने वाला है, 30 June पे एंड होने वाला है. रिकॉर्डिंग्स जो होंगे 33 days तक अवेलेबल रहेंगे, फॉर 33 days. ठीक है. सारे रिकॉर्डिंग्स जो भी हैं वो 33 days तक के लिए अवेलेबल रहेंगे आपके पास. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग दिस टाइम, एंड वी thank all of them who have joined us, and we thank all of your energies also that made us do this for today. Thank you so much. Sorry for extending. And yes, Ritu ji, she said. Rituji's question was answered, and that's why she actually made a move. She had something to do. अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी. Okay. The floor is open for sharings, and please mind blow us with your sharings. Yeah, and that after that we'll share something. Chota sa हाँ, cute fun sa. fun वाला game. Only after sharings we are going to share. Monisha ji, come on. शो begin हो, शुरू किया जाए. मेरी Thank अपलाइन भी है. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जीत आप ही की है. रजनी जी मेरी Congratulations, अपलाइन है. Manisha ji. थैंक यू सो मच. ये सब आप सबकी प्रेयर्स का, ब्लेसिंग्स का और मैनिफेस्टेशन का असर है. ये जो एनर्जीज आप देते हो ना सारा दिन, और मैं लेती रहती हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. So लव यू ऑल. whoever is new here, so Hmm. Monisha ji has acquired a milestone in her career जो उनको बहुत दिनों से गोल था. She had set that goal. उनकी कंपनी या जहाँ पे वो वर्क करती है, एक स्टेज वाइज उनकी प्रोग्रेस होती है, प्रमोशन टाइप्स होता है. तो शी हैज रीच्ड हर ब्रॉन्ज लेवल. जो लेवल होता है ना उनके सिस्टम में, जो ब्रॉन्ज लेवल होती है, फर्स्ट लेवल जो है उनका, उन्होंने आज बहुत सफलता से सफलता हासिल की. थैंक यू. So wonderful. With your all your hard work, with all the challenges that came to you, you still managed and made this possible for you with trust. And हक से बोल सकते हो आप, मैग्निफिस लाइक यू नो योर मैनिफेस्टेशन क्वीन है ना. And thank you बिल्कुल Rajni बिल्कुल ji, बिल्कुल. thank you Rajni ji for guiding her. Monisha ji या हमेशा आपका नाम लेते हैं. Thank you so much for guiding her, for bringing her into this wonderful team of Vestige that Monisha ji's company is actually. तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया मोनिशा जी को एक दिशा दिखाने के लिए, उनको अपने को इतना ज़्यादा अच्छा फील करने की, ये हक देने के लिए कि यस आई कैन ऑल्सो फील एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. Not just at the bronze level, she'll be reaching at the pioneer. That definitely, we are sure about it. Thank you so much, Rajni ji, for guiding her. Thank you so much. एंड थैंक यू मैं सो मच. इनकी सेलिब्रेट करने के लिए इनके लिए हेल्दी सी ब्राउनी बना रही हूँ, स्वीट पोटैटो की. अरे वाह. सोनिया प्रिया जी. के घर गई थी, उसने भी मेरा वेलकम इसी से किया था. हाँ. Beautiful. So nice. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Sonia, for coming. Thank you so much. We are blessed to have you. Thank you so थैंक यू much. सो मच. एंड सौम्या, योर हिंदी इज माइंड ब्लोइंग. मैं इतनी सारी किसेस एंड हार्ट्स दे रही थी कि इतनी अच्छी थी. मैं सिर्फ ओ माय हाँ, गॉड. सोनू सोनू शेयर करो. देखो मेरे ये बड़ी देर से 6 महीने से सिर्फ इतना सा मेरा विजन बोर्ड था. जब तारा ने करवाया था उसके बाद इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं हुआ. उस दिन बस कोकोनट लगून हुआ. ये जिस दिन मैंने लगाया ना, उससे नेक्स्ट डे ही मुझे ये लेवल मेरा अचीव हो गया था. बट ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ था. Hmm. मतलब बहुत जरूरी है. ये मैं कह रही हूँ कि अपना जरूर बनाएं विजन बोर्ड. और जिस Beautiful. जिस दिन लगाया मेरा, उसी दिन ही नेक्स्ट डे ही मेरा होने लग पड़ा. रजनी जी थैंक यू सो मच.
ये रात को थैंक यू 11:30 सो मोनिका रही जी। है। वो थैंक यू मैम। अनाउंस इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमारे को ये पता था कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है, अभी तो और बड़ा टारगेट जाएगा, तो इसलिए अनाउंस यस, नहीं किया था। 2 एक दिन रोका, पर आज हम लोगों को भी बेचैनी हो गई कि नहीं, अनाउंस तो करना चाहिए, अचीवमेंट हुई है, थैंक यू मजा सो मच निकल मैम। जाता है। Thank you so थैंक यू सो much. मच, थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस सोचो यू। मैंने कैसे कंट्रोल कर रखा था 2 दिन से। Thank थैंक यू you. सो मच, आप सबकी ब्लेसिंग से हुआ है। और सच में रजनी जी ने मेरे पे बहुत मेहनत की है। इतनी पेशेंस, इतनी पेशेंस, इतनी छोटी छोटी बात के लिए भी वो मुझे रात रात को मेरे को मैसेज छोड़े होते थे इन्होंने, वॉइस नोट, और मैं उसको रीड करती, सुबह सुनती थी। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you so much, Awesome. Monisha ji, for sharing. थैंक यू, Awesome. Awesome. Really awesome. थैंक यू। मुझे इस रास्ते पे चलाने के लिए आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद, कि अपने सपने को अचीव करो, अपनी खुशी को देखो, बस ये खुशी ये ना के चक्कर में। जब हमारी इच्छा होती है ना, मैंने तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में यही सीखा है कि यूनिवर्स उसके सहारे सब तरफ से लगा देता है। जब आप इच्छा करते हो तो उसके लिए हेल्प सब तरफ से अपने आप। और बिल्कुल हम कुछ नहीं कर रहे किसी के लिए, सब गाइडेंस ऊपर से ही आ रही है। बिल्कुल यूनिवर्स ही करवा रहा है सब कुछ। हम तो बस वही है, यूनिवर्स हम लोगों को चला रहा है। हम लोग बोलते तो हैं कि वी आर द कॉन्शियस क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ, बट देन यूनिवर्स इज क्रिएटिंग फॉर अस बिकॉज ऑफ आवर डिजायर। सो दैट वे। थैंक यू यस, सो मच रजनी जी, थैंक यू सो जिसने मच फॉर। ग्रो थैंक यू। होना होता है ना, मेरे दामाद ने फगवाड़ा गए होंगे, मैं नहीं गई, दामाद जी गए हैं। ये मेरे घर के बाहर से उन्होंने फोटो भेजी है कि चाची देखो, जिसको ग्रो होना होता है वो बिना मिट्टी और पानी के भी हो जाता है। हाँ, सदाबहार सदाबहार। यस। बहुत बहुत ब्यूटी, पीपल भी कहीं भी उग जाते हैं ना जिनको ग्रो होना हाँ, होता है तो। या बिल्कुल। और ये एक सेकंड और, सुजाता मेरी भाभी अमेरिका से इस टाइम साथ जुड़ी हुई हैं, ये उनके घर का गार्डन है। ओके। सुजाता देख रही होगी, दीदी ने बैकग्राउंड लगा रखा है। वाओ, सो अमेजिंग, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुजाता भाभी है क्या? यस, वो देखो सबसे नीचे। हाँ। भाभी Heart, शक्ल heart दिखा big. दो अपनी। हाय, वो सो के उठी होगी, अभी नहीं दिखाएगी। Awesome. Thank you Awesome, so thank much for you. pulling a crowd, मोनिशा जी। आप जैसे क्राउड को पुल करते हो, शायद ही कोई है ऐसे क्राउड पुल कर सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर। सबको इतना प्यार देने के लिए ना, सो या तो ये तो सारे अपने हैं। आप मनीषा जी यूं चाहती है ना कि मेरे को जो मिला है वो सबको मैं बांट पाऊं, बस शेयर मैं कर पाऊं। अपने तक नहीं रखना चाहती, मेरे पास जो जो भी है, सब कहते हैं पहले अपने लिए करो, उसमें भी मास्क पहले आता है लगाओ, फिर किसी और की जान बचाओ। मैं तो अपनी बचाते बचाते दूसरे का लगाने का सोचती हूँ। गुड। बस मुझे लगता है बहुत, यहाँ से बहुत मिला है, और मैं कहती हूँ सबको मिले, सबको मिले। ये सच में। वाला ये जो वाला जरूर करना पहले, है ना, जो मास्क है ना, पहले ये करके। बता तो रही हूँ, हिसाब से अपना दूसरे से मैं अपने तक कुछ नहीं रख सकती, मेरे को होता है बस जो है मैं बांट दूं, कि जो ये मुझे ना हम मैंने लोग पाया है वो। यस मैम। प्रोफेशनली ना, हम लोगों को अलाउड नहीं है कि हम बहुत ज्यादा जिसको तकलीफ है उसको कुछ दें, क्योंकि अगर भगवान ना करे किसी को कोई तकलीफ हो गई ज्यादा, तो वो नाम ये नहीं होगा कि हमने उनको हेल्प करने के लिए दिया, ये हो जाएगा इन्होंने कुछ नया दिया था इसलिए कुछ गड़बड़ हो गई, तो हमें कंपनी तो मना करती है। पर मोनिशा जी का ट्रस्ट इतना जबरदस्त होता है, वो कहती है नहीं नहीं मैं दूंगी, पक्का ठीक होंगे, देख लेना। तो मैम वो डॉक्टर देती की है बीवी को सबको। मैम डॉक्टर की बीवी को खिला दिया था ये, प्रिया को कोलेस्ट्रॉल खिला के आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिलीफ ही तो है सब कुछ करवाने वाला। वो जो दवाई वगैरह है जो भी हम लोग लेते हैं ना, वो तो प्लेसीबो होता है, वो सब प्लेसीबो है। हम लोग अगर सोचेंगे कि हाँ ये मेरे पर काम करेगी, तो वो काम करेगी ही करेगी, उसमें कुछ दो राय है ही नहीं। सो डेफिनेटली इट दवाई वर्क। तो दवाई तो है ही नहीं ना, तो मैंने तो इनका डर ही बस खत्म किया। मैंने कहा ये मत सोचना कि दवाई है, दवाई नुकसान कर सकती है, हमारे तो नेचर से ली हुई चीजें हैं, इनका कोई नुकसान तो है ही नहीं। बिंदास दो, बिल्कुल। लेकिन इसको ऐसे मत देना कि बिल्कुल जिसकी हालत खराब हो, वो उसको भी देती हैं, डेयरिंग है जबरदस्त। Beautiful, थैंक यू। guys. Loving your bond, loving your energies, loving your professionalism. Thank you so much for sharing, Monisha ji. Thank you for making B2B part of your success. We are grateful to you. Thank you. Anybody else has a sharing? Anybody else want to share? Anything that you felt in this week that you think is motivating enough, that
somebody might get inspired by it and take actions for themselves. Any message that you want to give, that you received from universe, please feel free to share. And we are I here. love your Hindi. Thank you एक so मोटा much. सा रस्सी आ रहा है और कई बारी मेडिटेशन में हंसी छूट जाती है. Arey wow, that's good. If you're laughing, that's Well, a good. today you used one new word in Hindi. 2, 3 times you used that word. I couldn't understand what that word was. What that word was, huh? I don't know. In the mind gym today, she used like I think some 3, 4 times she used that same word. Yeah, see, I'll tell you one thing. If you guys want to get the focus of universe from me, okay? आपका फोटो आप मेरे आंखों के सामने होना चाहिए. जिसका भी मैं चेहरा लास्ट देख के आंख बंद करती हूँ ना, I मैं know. उसी के जैसे आज लास्ट में वो सरिता गुप्ता जी का आई सॉ मेहता, एंड हाँ. आई उनके लिए चैनलाइज हो गया पूरे बॉडी में. सो पल्लवी को दिखाना पड़ेगा अपना चेहरा हाँ, हमेशा. पल्लवी दिखाई देगी तो मोनिशा जी तंग रह जाएंगे उस दिन क्योंकि पूरा इंग्लिश चैनलाइज होने वाला है उस दिन. But it stay sure that your subconscious mind understands all the languages. It doesn't need language only. और Yes. Everything, ऐसा हुआ everything. है. But I could figure out that she used one new word today. That you could figure out. Actually, like computer has got alphanumeric and binary. Na computer understands in 0 and 1. So our subconscious mind also understands in bits. So Yeah, you've told that many yeah, so times. everything is getting actually configured in that way by subconscious mind. Understands everything. We are Yeah, all Solid. one and zeros in your head right now if you go and see. It's और not मैं But आप we enjoy. Actually, I enjoyed. It हाँ, और wasn't मैं Sometimes. आपको सच में एक बात बताऊं. मैं सॉरी, आप कंप्लीट कीजिए पहले. आरती आप कंप्लीट कीजिए. नहीं हो गया मेरा. मजे करती हैं बोल रही हैं मेरे हिंदी से. हाँ. She has fun and I love it. हाँ, तो सबसे Yes. दुनिया में टफेस्ट काम ये है कि किसी के चेहरे पे हंसी हंसाना. आना और किसी को स्माइल करवाना. दिस इज द वर्ल्ड्स टफेस्ट जॉब एंड बंद आंखों से कर रही हूँ भाई साहब. बिगेस्ट कॉमेडियन. बंद आंखों से हमारे को हंसा रही हो. Exactly. Thank यस you. मोनिशा जी. हाँ. अ, जब प्रिया इंग्लिश में करती है ना, आप मानोगे नहीं, मेरे को वो हिंदी में सुनता है. अब हम राधा स्वामी है, हमारे महाराजी जो अब मौजूदा बाबा जी हैं. इससे पहले वाले जो महाराजी थे, सोनिया तेरे को याद होगा, कोई गुजराती फैमिली हमारे साथ ठहरी हुई थी. हम ब्यास में रह रहे थे, तो मेरी मदर ने उनको पूछा कि तुम्हें हिंदी समझ आती है? नहीं, पंजाबी में बाबा जी कर रहे थे सत्संग, वो पंजाबी में ही करते थे. तो मेरी मदर ने पूछा कि आपको पंजाबी समझ आती है जो महाराज जी सत्संग करे? कहते नहीं, वो तो गुजराती में कर रहे थे. सोनू तेन याद है? उनको गुजराती सुन रही थी. और प्रिया एक दिन सोनिया मेरे घर आई हुई, ये 2 लाइनें सुन के भाग गई. प्रिया इंग्लिश में करा रही है. मैं क्या सोनू तू कनेक्ट हो जाएंगी, तो प्लीज करके देख. और प्रिया मुझे वो हिंदी सुनती है. सच में मेरे को सर समझ आता है, मैं कनेक्ट हो पाती हूँ. एक दिन मैंने नहीं मेडिटेशन जो कराई. आपने मुझे संडे वाला करवाया था ना वो मेडिटेशन, तो वो तो मेरे को लिटरली, हालांकि बड़ी देर से सुन रही थी. जब मेडिटेशन वाला पार्ट था ना, रोहित एंड पंडित जी अंदर चले गए थे, तो मैं गाड़ी में हाँ. अकेली वो थी बूट एंड आई कैंप, वो बूट कनेक्टेड. कैंप. मैंने कहा शायद मुझे पसीने आ रहे हैं, बट वो पसीने रुक ही नहीं रहे थे, आंखों से आ रहे आंसू थे. थे, वो आंसू थे. मतलब तो सच यस में. आई कैन कनेक्ट. वो मैं आई एम, तो मैं कह रही हूँ ना, आई एम लविंग योर मेडिटेशन वाला पार्ट. मैंने प्रिया दी हाँ, से परसों भी बात की है इस सच्ची. बारे में. सोनू एक दिन ना मैंने मेडिटेशन कराई ऐसे सिंपल सी, और मैंने बाद में सॉरी पल्लवी को अपोलोजाइज किया कि सॉरी मैं बहुत शुद्ध हिंदी बोलती हूँ. बट वो भी कनेक्ट कर रही थी. चाहे उसको सच में सोनू सबसे कह रही है, सच में ये होता है. होता ही है. बिल्कुल. लैंग्वेज कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ वो नहीं है. कोई गाना था, आप दोनों से शेयर किया मैंने बंगला में, वो मुझे यहाँ लग रहा था, मेरे यहाँ से यहाँ पहुंच रहा था. मैंने सोचा किससे पूछूं, मैंने प्रिया को भेजा. मैंने कहा प्रिया देखना ये क्या बोल रहे हैं. ओ माय गॉड, जब प्रिया ने मुझे बताया, सच में कोई प्यार की और इन चीजों को ना किसी भाषा की जरूरत नहीं है, कोई नहीं लैंग्वेज होती. की नीड नहीं है. आपको यहाँ से वो फील आ जाती है. सच में. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Awesome. Awesome. Excellent.
चलो मैं ओके, शेयर कर थैंक लेते यू। हैं कुछ on बातें जो that कि हम लोगों को याद हैं, रिसेंट हमारी कम्युनिकेशन में जो बातें आई हैं वो बताती हूँ। तो हमारी बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा आंटी हैं, तो उन्होंने वो, शी इज़ नॉट अ प्रैक्टिशनर ऑफ ग्रैटिट्यूड एज सच, शी इज़ नॉट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर ग्रुप, बट शी इज़ आर वेरी लवली। सौम्या की नेबर है, वैसे सौम्या के फ्रेंड की मम्मी है वो। बट वो रिसेंटली एक ट्रिप पे गई थी, तो उनको हम लोगों ने जो जो बताया था कि आपने स्क्रिप्ट करना, एंड शी वाज अमेज्ड, शी सेड दैट एवरीथिंग एक्चुअली वेंट लाइक दैट, एंड यू नो वी कैन एवरी डे वी कैन डिजाइन दैट थिंग। मैंने कहा हाँ बिल्कुल वी कैन डू दैट थिंग। तो उन्होंने किया और उनको बहुत अच्छा, मतलब वो जहां पर जाते, वो लोग ना फ्रेंड्स के ग्रुप गए थे, तो फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ जब वो गई थी तो कहती कि ना मुझे, मैंने लिखा भी नहीं था ऐसा, बट मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ सीट मिल गया है ना, जहां पर मैं जो खाना चाहती थी, जैसे खाना चाहती थी, वो वैसे मिला मुझे। तो शी वॉज सो हैप्पी अबाउट इट। शी इज एन एल्डरली, वी से ना, हम लोग कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है सुना है, जो जितनी छोटी उम्र होती है ना, उसको रिवायर करना उतना आसान होता है, बट एज एन व्हेन लाइक वी ग्रो अप, जितने बड़े होते जाते हैं, साइकोलॉजी भी वही कहती है, साइकेट्रिस्ट भी वो कहते हैं, जितना बड़ा पेड़ है उसको काटने में उसको दिक्कत आती है ना, उसको समझाने में, तो वो बड़ी है फिर भी इतने अच्छी तरीके से समझ पा रही सिचुएशन। देन हमारी बीना जी भी बता रही थी कि एक बचपन से ना उनको एक आदत है, जैसे किसी किसी को जैसे नेल बाइटिंग की आदत होती है, किसी को कुछ करने की आदत है, और मतलब दिस इज आउट ऑफ एवरीथिंग दैट दे हैव शेयर, बहुत सारे शेयरिंग्स में से कुछ कुछ चीजें जैसे याद रह जाते हैं ना, क्योंकि हम लोग उस टाइम जोन्ड आउट होते हैं, नहीं इतना पता रहता है। तो उनकी याद आ रही है मुझे। तो उन्होंने बताया था कि जब भी वो स्ट्रेस होती थी तो एक पर्टिकुलर एक्ट करती थी, है ना, आपको पता है ना, जैसे कि आप किसी को ओसीडी की दिक्कत होती है तो उसको कोई पर्टिकुलर एक्ट करने की आदत हो जाती है, वो कहती थी कि मैं कुछ जीभ से कुछ ऐसा करती थी, एंड शी सेड ऑन दैट टाइम ओनली शी रियलाइज्ड इट कि अब ना मैंने इतने समय से वो करना छोड़ दिया, मतलब अब अचानक से उनको रियलाइज, पहले वो जैसे मान लो कि जैसे आपने देखा हो, सौरव गांगुली जैसा बंदा भी, आप पता नहीं 1 किलो नाखून खा लेता है जब उनका विकेट जब गिरने लग पड़ते हैं, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अपने भी काट कर देकर आऊं क्या इसको खाने के लिए, तो इतनी टेंशन में लोग ऐसे कर लेते हैं, नेल्स नेल्स बाइटिंग एंड ऑल। सो शी एक्चुअली केम आउट ऑफ दैट काइंड ऑफ अ thing that she had once. So this is such a good rewiring that has happened, because that shows significantly that you were stressed, and because of the stress you are doing something, but now we have given them bounce back mechanism, तो उससे क्या हो जाता है, वो बाउंस बैक कर लेते हैं, वो स्ट्रेस फील ही नहीं करते हैं। So this is so good and so brilliant that that the guys are seeing so much huge difference in their lives. रचना का भी रचना ऑडिट का। क्लियर हुआ है, उसका भी विक्ट्री है इस वीक का, कि उसके कंपनी में ऑडिट था एंड जीरो नॉन कंप्लायंस, यानी कि कोई And she नेगेटिव ही was नहीं so मिला है, fearful ऑल about it. 100 आउट ऑफ 100, ऑडिट में 100 आउट ऑफ 100 मिलना वाह। नामुमकिन है। और And that's a उसका तो huge company. सीए, शी इज अ She is CA. सीए चार्टेड अकाउंटेंट, तो वहां पे 100 आउट ऑफ 100 मिलना तो बहुत ही बड़ी चीज है। सो शी वॉज वेरी हैप्पी, उसके उसका बहुत बड़ा फियर निकल गया है। सो या दैट वाज अनदर विक्ट्री दैट वी हैव फॉर द टीम, फॉर द ट्राइब। यस कॉन्ग्रेचुलेशन यस। एवरीबॉडी। मेघना का भी विक्ट्री है, शीतल की, कितना ज्यादा उसने, उसका जो वेट लॉस है इतना हाँ, ज्यादा, और इतना बहुत जल्दी अचीव कर लिया, वो थोड़ा सा और बच गया, कहती दीदी मेरा थोड़ा सा और बच गया, एंड शी इज फीलिंग सो गुड। मैनिफेस्टेशंस इतनी ज्यादा हो रही है उसको, कहती कि ना मुझे लग रहा था, एक दिन मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि यार मेरे को टाइम नहीं मिलता, ट्रेडमिल आ जाना चाहिए, आउट ऑफ नो वेयर ट्रेडमिल उनके घर में आ गया अपने आप ही, उनको पता भी नहीं है कहाँ से आया कैसे आया, अचानक से उनके किसी हस्बैंड के फ्रेंड ने उनको कॉल किया कि यार ये ट्रेडमिल ना हम लोगों को बहुत भारी पड़ रहा है, हम लोग ना इसको देखना किसी को चाहिए हो, तो आधे रेट पर उनको वो ट्रेडमिल मिल गया। तो ऐसे निरंतर, मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, बट हाँ वो आ नहीं पा रहे हैं इस टाइम पे, तो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो गाइस या, so let us celebrate all the victories, and congratulations to all those victorious people. Lots of love and happiness to you guys, and may you always thrive and flourish, and you have a brilliant, lovely day every day, है ना। और मेरी चलो या शेयर मेरी कर लेते हैं, शेयर करके फिर हम आप लोग। कर रहे हो कि मैं करूँ? अच्छा मैं करूँ, मैं करती हूँ रुको। तो छोटा सा है कि हम हमारे ट्राइब में हम हर 2 दिन के लिए एक चैलेंज करते हैं, जिससे लोग एक्टिव रहे, उनका राइट माइंड लेफ्ट माइंड चलता रहे, एक ही माइंड ना यूज करे, दोनों माइंड यूज करे, कुछ अच्छा करे, कुछ नया करे, फील दैट। तो हम रोज 2 दिन के लिए एक चैलेंज देते रहते हैं, उसी का कोलैज एक वीडियो बनाया है हमने। सो लेट अस सी किस चैलेंज का बनाया है। दिस इज ऑल अ सरप्राइज टू इवन आवर ट्राइबीज।
बहुत क्यूट हमारे ट्राइबीज है. वी हैव द बेस्ट ट्राइब, बेस्ट पीपल एक्चुअली. सो वी आर सो ब्लेस्ड फॉर दिस. हो रहा है. यस, या करती हूँ अभी. ओके. प्ले. हम्म. Yay. This is just one, and we have many, many such things. So, thank you so much, Tribes, for participating and activating all the lobes of your brain. You are so brilliant, so amazing, and thank you so much for your participation, which is actually fantastic. So, we are forever grateful to each and every one of you for this. And thank you so much, everyone, for joining in. This is the most precious time that you gave to us. Thank you so much. We are forever indebted for that. आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा हमारे साथ बिताया हुआ ये 1 घंटे 20 मिनट हो चुके हैं. सो अपॉलॉजीज फॉर दैट. तो या शुक्रिया आप सभी का. प्लीज. Thank you so much, guys. See you in the next tribe meetup, which we will declare जब open है. तब तक के लिए take care. See you guys. Love you बाय बाय. all. लव यू Thank ऑल. you so लव यू सो मच. much. Thank Very you. Very Thank you nice. nice. so much. Thank you Bye. so Thank you much. much. And this is a request that you can definitely visit our Instagram profile, our YouTube channel. और कल हम लोग जो भी करते हैं हमारे YouTube चैनल पर Instagram पे मिल जाएगा. ये ट्राइब मीटअप का रिकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा अपने YouTube चैनल में. प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए. और हमें बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. ये सीमा जी कौन है? ये चंडीगढ़ वाली तो नहीं है? ये चंडीगढ़ वाली नहीं है, ये सोनीपत वाली है. ओके, क्योंकि वो चंडीगढ़ से मेरी मम्मी की, उनका नाम भी सीमा देवी है, तो मैंने कहा. मुझे लग रहा ओके. है ये मेरी वाली सीमा है. हम सारे हमारे. सीमा राठी, सीमा राठी जी. हाँ जी, हाँ हाँ, शायद अच्छा, पॉसिबली वही है, सीमा ही मुझे है. क्लियर करके बताना कि सीमा राठी जी हैं कि मेरे वाली सीमा, दो में मेरे वाली आने वाली. लो जी, मेरी वाली सीमा है. राधा स्वामी जी, राधा स्वामी दीदी. हाँ, ये शी इज हमारे माई वाली सीमा है. हाँ, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड गाइज. शी इज माई बेस्ट फ्रेंड. She is a one divine soul Thank who you. Thank you so actually much. is everything for me. So yeah. Thank you so much. Thank you, Seema, for थैंक joining. यू. लव यू Thank सीमा you. जी. Thank you. Thank you. दर्शन Thank you देने so के much. लिए. Thank you, guys. All right. Bye चलो, bye. Okay. guys, take care. See Take you. care. Bye bye. Have a great weekend, guys. Thank you so much.